Mic testing 1 2 3. Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome to a brand new episode of Therapy Tuesdays. आज का topic is very, very, very close to my heart because today we're talking about how to make it big in life as an introvert. Now, for today, this episode is our safe space to celebrate the strengths of an introvert and also help you thrive in a world that generally rewards extroverts more than us. I'm Aditi, also known as that quirky miss on the internet. And if you've ever thought that your shy nature or introvert nature is holding you back from success, I'm here to tell you that you couldn't be more wrong. Today, we're diving into how introverts can achieve massive success without pretending to be someone that they're absolutely not. And by the end of this episode, मेरा गोल यही है कि आप लोग empowered feel करो and you are ready to take on the world on your own terms and not on someone else's terms or perspectives. So without any further ado, let's get started. All right, so the first and most important thing that you need to understand, and it took me also a very long time to understand, is that हमारी जो ये introversion होती है या फिर ये जो shy nature होती है, that is actually our superpower. Being an introvert doesn't mean that you are underconfident या आपकी low self-esteem है. It just means that you recharge differently from the world. Like my mom is the perfect example of a happy extrovert. She recharges, she gets her energy from talking to people, उनसे interact करना, उनसे लंबी लंबी गप्पे मारना, and I can just see her battery getting ऊपर and ऊपर and ऊपर and ऊपर जैसे जैसे वो लोगों से मिलती है. While me on the other hand and even my dad, we're both introverts. So हम लोग जैसे लोगों से मिलते हैं, we catch on vibes very very differently. And अगर हमें किसी में कुछ भी off दिख रहा है ना, तो हमारी बैटरी ड्रेन होती रहती है, हम ऐसे डिस्चार्ज होते रहते धीरे धीरे. So we recharge in our own safe space with the kind of people जो एक दो ही होंगे जिनके साथ हम बहुत अच्छा फील करते होंगे, या फिर जस्ट in our own safe space अपने me time में डीप थिंकिंग करके कुछ अच्छा देख के उस चीज़ से हम रिचार्ज करते हैं. सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्सट्रोवर्ट्स. एंड बिफोर एनी एक्सट्रोवर्ट गेट्स ऑफेंडेड, आई एम जस्ट हियर टू से दैट सबका अपना अपना एक डिफरेंट तरीका होता है रिचार्ज करने का, लोगों से इंटरैक्ट करने का. आई एम नॉट सेइंग कि इंट्रोवर्ट्स का वे इज राइट एंड एक्सट्रोवर्ट्स का वे इज रॉन्ग. आई मीन टू एज देयर ओन. सब डिजर्व करते हैं अपनी अपनी वे में सक्सेस अचीव करना. बट क्योंकि इंट्रोवर्ट्स को लोग ताने ज़्यादा मारते हैं कि आप लोग बोलोगे नहीं तो जिंदगी में, समाज में आगे कैसे बढ़ोगे, तुम्हारा क्या होगा, ये सारी चीज़ें सुन सुन के मैं पली बड़ी हूँ. सो दैट इज़ वाई आई एम हियर टू empower my fellow introverts. ये ना बड़ा स्कूल की क्लास वाले जैसा साउंड करेगा, बट डिड यू नो दैट इतने सारे इंट्रोवर्ट्स हमारे समाज के इतने सक्सेसफुल मुकामों पे पहुंच चुके हैं. से फॉर एग्जांपल मिस्टर रतन टाटा, बिल गेट्स, इवन आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लो, ही इज एन इंट्रोवर्ट. ऑल्सो फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन, द जीनियस, दे वर ऑल इंट्रोवर्ट्स. एंड आई गेस इन सब लोगों में एक ही ये चीज़ कॉमन मुझे दिखी है जब मैंने इनके बारे में पढ़ा है या इनका बिहेवियर स्टडी किया है, देखा है, इज़ दैट दे आर नॉट फोर्सिंग देमसेल्व्स टू बी समवन एल्स. दे आर नॉट मोल्डिंग देमसेल्व्स टू बी पुट इन दैट काइंड ऑफ अ बॉक्स जिसमें दुनिया उनको देखना चाहती है. दे आर जस्ट वेरी कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स एंड दे आर प्लेइंग टू देयर स्ट्रेंथ्स. जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स है, वो खुद से बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर है, सेल्फ से कनेक्टेड है. दे नो कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, दे प्ले ऑन इट विदाउट फोर्सिंग देमसेल्व्स टू बी समवन एल्स. एंड ट्रस्ट मी, फॉर सक्सेस you don't have to be an extrovert, because in my opinion success is not at all about how loud you are. It's about how you utilize your abilities. And trust me, there are a lot of jobs in the world जिनमें आप success पाओगे and बहुत successful feel भी करोगे, अपने बारे में अच्छा feel करोगे without being loud, without being forced to talk to a lot of people. अब मैं एक normal example देती हूँ because मैं हर चीज़ में अपना example नहीं दे सकती, नहीं तो आप लोग कहोगे ये अपना मुँह मियाँ मिट्टू बन रही है कि मैं बड़ी successful हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. बीच बीच में I will give my real life examples because I know you guys love it. But J.K. Rowling का एग्जाम्पल आप ले लो. She has written one of the most beloved novels of all times. She's the author of Harry Potter and she's an introvert. She used to go and sit silently alone in coffee shops and write Harry Potter. वो अपनी deep thinking का, अपनी critical thinking का इस्तेमाल करती थी, वो अपनी imaginative creativity ये सब flow होने देती थी. and वो flow क्यों होती थी? because she used to sit alone and allow herself that time to think, to imagine, to be creative. I think the best thing that you can do is play to your strengths. ये सारे लोग जिनके भी मैंने नाम लिए, they've all been playing to their strengths rather than focusing on their weaknesses. So थोड़ा सा ना strengths की बात कर लेते हैं introverts की. because I'm an introvert तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से closely बता पाऊँगी. I feel like the first strength we have is that we are deep thinkers. We are also
वेरी मच ऑफ एन ओवर थिंकर, बट आई फील लाइक ये जो क्रिटिकल एंड डीप थिंकिंग होती है, लोगों का एनालिसिस करना होता है, सिचुएशन को एनालाइज करके उसके बारे में डीपली सोचना होता है, दिस जस्ट रियली हेल्प्स इन बीइंग क्रिएटिव। एंड दैट इज़ वाई क्रिएटिव फील्ड्स में आप देखोगे इंट्रोवर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल दिस अलोन टाइम एंड ऑल दिस टाइम जिसमें वो वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके खुद से विद इन देम सेल्व्स अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, अच्छे से अपनी थॉट्स एंड अपने आइडियाज़ बुन पाते हैं, एंड दैट जस्ट रियली हेल्प्स देम इन समथिंग दैट रिक्वायर्स ईदर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी और एनालिसिस एंड इवन क्रिएटिविटी। द नेक्स्ट स्ट्रेंथ, introverts are often very good listeners, and I can take credit for that because मेरे जितने भी friends रहे हैं, they always say that I am such a good listener. I give them my undivided attention to them and not just like करके सिर हिलाते रहना. I genuinely listen. I am genuinely interested in you, and that is why जो लोग good listeners होते हैं, they're able to connect with people on a deeper level, which in turn makes them good leaders in any kind of a project or great problem solvers, whether it's a friend जो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, या फिर अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो वहाँ पे भी आप, क्योंकि आपकी थिंकिंग एंड आपकी लिसनिंग ये वाली चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग है, यू विल बी एबल टू कम अप विद गुड सोल्यूशंस. द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई ओपिनियन इज सेल्फ सफिशिएंसी, बिकॉज इंट्रोवर्ट्स आर सो गुड विद देयर ओन कंपनी एंड दे रिचार्ज विद इन देमसेल्व्स. आई फील लाइक दे आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट, विच मीन्स दैट आपको बहुत ज़्यादा लोगों की ना ज़रूरत नहीं है, एक झुंड की ज़रूरत नहीं है अपनी एक एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए. यू आर वेरी कंफर्टेबल in yourself and you do not need constant praises or external validation to stay motivated. You derive that kind of motivation from yourself, and it also in turn makes you very focused and persistent because आप बहुत ज़्यादा outer world से distracted नहीं हो, जो कभी कभी मुझे दिखता है extroverts में, जो मैं आसपास notice करती हूँ. Now this is not a diss but this is just an observation कि extroverts ना social interaction से काफ़ी ज़्यादा distract हो जाते हैं. It's also a very good pro for them because वो अच्छे connections बना पाते हैं, while on the other hand introverts इतनी जल्दी कनेक्शंस नहीं बना पाते हैं, बट बिकॉज वो बहुत ही फोकस्ड और परसिस्टेंट होते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है जिससे उनको जो भी टास्क दिया गया है या उन्होंने जो एक बार सोच लिया, एक बार जो ठान ली, वो अच्छे से फोकस से कर पाएंगे बिकॉज दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ सोशल डिस्ट्रैक्शन और वैलिडेशन. एंड ट्रस्ट मी, विद फोकस एंड परसिस्टेंस आई मेड अ प्लेस इन दिस मीडिया करियर जहाँ पे जनरली एंड टेक्निकली अगर आप देखो या सोचो तो एक्सट्रोवर्ट्स के ज़्यादा चांसेस है आगे बढ़ने के, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग, इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ ग्रैंड एंड गुड फर्स्ट इम्प्रेशन एंड मेकिंग दैट ऑरा अराउंड यू. बट डू यू थिंक कि मैं किसी रूम में एंटर करूँगी तो मेरा कोई ऑरा होगा? बट येस, आई स्टिल हैव एन ऑरा एंड दैट इज़ द ऑरा ऑफ बीइंग अ गुड कंटेंट क्रिएटर, अ पर्सन हु इज़ रिलायबल. ब्रांड्स कैन ट्रस्ट मी विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. लास्ट ईयर मैंने बहुत अलग अलग टाइप के काम किए जहाँ पे मेरा एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट आई वॉजंट. बट स्टिल मैं उन प्लेसेस में थी जहाँ पे यू नो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी, इट वॉज टफ फॉर मी, एंड एक एक स्टेप, एक एक चीज़ करने से पहले मुझे भी वो दिल में से धुक हो रही थी, बट आई स्टिल डिड इट बिकॉज आई प्लेड टू माई स्ट्रेंथ्स. एंड ट्रस्ट मी, वंस आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करने लगोगे ना, आसपास के लोग, बी इट इफ़ यू आर इन अ कॉर्पोरेट जॉब, आपका बॉस, आपके आसपास के कोलीग्स आपकी वो स्ट्रेंथ्स ही नोटिस करने लगेंगे. इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्शन. जो आप अपने अंदर फील करोगे वही आप प्रोजेक्ट करोगे एंड वही लोगों को दिखेगा. कुछ लोग होंगे जो आपकी नेगेटिविटी और वो वाली साइड देखेंगे, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आप यूनिवर्स में डाल रहे हो वही चीज़ आपको वापस मिलती है. सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, प्ले ऑन माई स्ट्रेंथ्स, एंड दैट इज़ वाई इवेंचुअली आई स्टार्टेड गेटिंग दीज ब्रांड्स दैट सी द इम्पैक्ट, दैट सी द पोटेंशियल, एंड देन दे गिव मी अ चांस. अपनी फील्ड से एग्जाम्पल देती हूँ. हु वुड हैव थॉट दैट अ ब्रांड विल टेक 8 to 10 people from all around the world. कितनी आबादी होगी इस दुनिया की, हाँ, all around the world से 8 से 10 लोग आ रहे हैं to London to attend Era store, and there is only one person जो इंडिया से जा रहा है, and that person is an introvert. मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, but brands also see people, normal people at higher levels recognize the potential and impact of an introvert जो अपना काम अच्छे से कर रहा है, and they know that you do not have to be an extrovert always. आप अगर अपना काम अच्छी शिद्दत से कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, and you excel at it, you will definitely get your chances. You will always get your dues sooner or later in life. 20-year-old Aditi would have freaked out अगर उसको पता होता कि 29 या 30-year-old Aditi ये कर रही है. And I know it is very tough in a world where
मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लाउड एंड उनकी वॉइसेस आपसे पहले सुनी जाती है. वो कुछ अचीव करते हैं तो उसका ढिंढोरा इतना पीटा जाता है कि अगर आपकी अचीवमेंट चाहे उसी लेवल की हो, उससे थोड़ी सी छोटी हो या उससे थोड़ी सी बड़ी हो, you are not good at that ढिंढोरा beating, so it is difficult. But as an introvert, it is very essential, very important to build your confidence without being loud. There's a thing called quiet confidence and I thoroughly believe in it because confidence is never about volume. It is always about competence. It will always be about preparation. जितना आप prepared होगे, जितने आप अपने आप को, अपनी skills को brush up करके काबिल बनाओगे, तो सामने वाला बंदा जितना भी loud हो, आप तक वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आप डिजर्व करते हो वो पहुंच ही जाएगी. यू डू नॉट हैव टू बी लाइफ ऑफ द पार्टी, जस्ट शो अप प्रिपेयर्ड. लाइक अगर आप किसी जगह जा रहे हो जहाँ पे एक डिबेट हो रही है या आप किसी पार्टी में जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है कुछ टॉपिक्स पे बात होगी, सो यू डू नॉट हैव टू बी द पर्सन जो सबके पास जाके सबसे बात कर रहा है. जिनको उस चीज़ से खुशी मिलती है उनको वो करने दो, उसमें भी कुछ बुरा नहीं है. बट आपको तो नहीं मिल रही ना उससे खुशी, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो. सो व्हाट विल यू डू? यू विल डू जो आपको पसंद है. तो ठीक है, आपको थोड़ी सोशल इंटरेक्शन करनी है, आपको लोगों से मिलना है, आप ये चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. आधी से ज़्यादा दुनिया ना डरी होती है, आधी से ज़्यादा दुनिया नाटक कर रही होती है एक मास्क लगा के. एंड एवरीवन इज़ डूइंग दैट. डू नॉट थिंक कि कोई बंदा वहाँ पे खुश है. डू नॉट थिंक कोई बंदा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे वेल प्रिपेयर्ड आया एंड इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर देम. एवरीवन has their own insecurity and I feel like ऐसे टाइम पे as an introvert the best thing that you can do is just come prepared. आपको पता है वहाँ कैसे लोग होंगे, आपको थोड़ा आइडिया है, आप प्रिपेयर कर लो कुछ टॉपिक्स माइंड में. This is what I used to do when I used to attend these award functions जो मामा अर्थ और फेमिना के होते थे या किसी क्रिएटर इवेंट में जाना होता था या किसी ग्रुप से मिलना होता था. I used to always think कि okay, I probably will meet these people out there. How will I say hello? How will I introduce myself अगर कोई बड़ा ब्रांड सामने हुआ and I really want to work with them? How will I approach them? How will I meet गज़ल अलग and वरुण अलग जो मामा अर्थ के क्रिएटर्स एंड फाउंडर्स हैं, उनसे मैं कैसे जाके बात करूँगी? या फिर अगर बाई चांस मुझे अवार्ड मिल गया बिकॉज आई एम अ नॉमिनी, तो मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगी? सो ये सारी चीज़ें अगर आप कुछ कुछ कीवर्ड्स अपने माइंड में रख लो, प्रिपेयर करके रख लो, देन यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ ऐसे अस्थिरता जो लाइफ में हो जाती है कि मैं क्या बोलूँ, वो वाली जो घबराहट होती है वो नहीं आएगी. एंड यू विल फील वेरी प्रिपेयर्ड इफ़ यू have a little bit of idea कि आपको क्या करना है वहाँ पे जाके. Of course you have to be prepared for anything unexpected also, like आपसे कोई कुछ पूछ ले and you are taken aback. I would say कि ऐसी situations से बचने के लिए cancelling plans is the best thing that I used to do, but आगे जाके मुझे ऐसा feel हुआ या I realized growing up that हर चीज़ cancel करना is not good for your own growth. Like कोई भी काम हो, अगर आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप किसी से मिलोगे नहीं, फ्रेंड्स नहीं बनाओगे, या फिर आप सोशल सिचुएशंस में जाओगे एंड कंपनी के साथ कहीं जा रहे हो, आपकी कोई टीम का कुछ डिस्कशन है, पार्टी है, व्हाटएवर, बॉन्डिंग एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है जहाँ पे यू हैव टू स्पीक अप, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज आगे जाके ना इट्स ओनली गोना गेट बिगर. अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, आज एक टीम मीटिंग है, कल को कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है जहाँ आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए एंड आपको बहुत सारे लोगों को कमांड करना पड़े. एंड यू डेफिनेटली वांट टू ग्रो इन लाइफ, राइट? सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज स्टार्ट स्मॉल. छोटी छोटी सिचुएशंस में स्पीकअप करना स्टार्ट करोगे, अपने ओपिनियंस देना स्टार्ट करोगे, तभी बड़ी सिचुएशंस के लिए आप रेडी हो पाओगे. सो लाइक प्रैक्टिस इन लो प्रेशर सिचुएशंस बिफोर मूविंग टू द लार्जर वंस. ऑल्सो वन थिंग दैट यू कैन डू एज अ प्रोफेशनल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इज यूज राइटिंग टू कम्युनिकेट. लाइक यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ ChatGPT. आप कुछ लिखना चाहते हो एंड आपको नहीं कुछ कंफर्म हो रहा है कि मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है, वहाँ से एक स्पेल चेक, अ क्विक चेक ऑफ योर ग्रामर, ये सब कर सकते हो. एंड देन यू कैन यूज़ इट टू राइट ईमेल्स एंड सोशली इंटरेक्ट करना, लिंक्डइन पे लोगों से इंटरेक्ट करना. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू विदाउट कमिंग फेस टू फेस विद पीपल या विदाउट पुशिंग योर सेल्फ टू बी दिस एक्सट्रोवर्ट पर्सन दैट यू आर नॉट एंड जस्ट मेसिंग अप द सिचुएशन. यू गाइज नो मुझे सोशल एंग्जाइटी भी है, मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ, सो आई हैव नेवर बिन द काइंड ऑफ पर्सन जिसको जब आप स्पॉट पे डालो वो कभी भी पसंद करे. लाइक इफ़ यू एवर आस्क मी टू कम अप एंड पुट मी ऑन अ स्पॉट, मुझे वो अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे वो लोगों की नज़रें मेरे पे नहीं चाहिए. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड विद बीइंग इन माई ओन स्पेस. रूम के कॉर्नर में आप मुझे एक दो लोगों के साथ फाइंड करोगे. आई विल नेवर बी द काइंड ऑफ पर्सन जो डेलिबरेटली जाके बीच में सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहे. बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ जॉब आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू बी इन दिस सिचुएशंस व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल कम अप टू मी एंड दे वांट टू टॉक टू
me, they want a picture with me, they want to have a conversation with me, and there is nothing wrong with that. I welcome that because I respect their respect for me, I respect that they love me, I respect that the person, वो भी तो कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है जो इतनी हिम्मत करके मेरे से बात करने आ रहा है, सो आई रिस्पेक्ट दैट. बट यू हैव टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय, जो मैंने फर्स्ट चीज़ बोली थी, बीइंग प्रिपेयर्ड. इफ़ यू नो यू आर गोइंग इन टू अ काइंड ऑफ सेटिंग जहाँ आपको ज़्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी, कम अप विथ 4 टॉपिक्स इन माइंड पहले से ही कि जो भी होगा मैं इस बारे में बात करूँगा या करूँगी, जिससे वी वोंट हैव दीज ऑकवर्ड साइलेंसेज. या फिर अगर मैं ऐसी जगह जा रही हूँ तो व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस जो मुझसे कोई पूछेगा, तो मेरा उसका क्या आंसर होना चाहिए. अगर मेरे को किसी के पास जाना है, आई नीड टू लर्न 3 और 4 लाइन्स जिनसे मैं बेस्ट पॉसिबल वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकूँ. दीज आर ऑल द ब्यूटिफुल एंड छोटी छोटी कम्युनिकेशन स्किल्स जो सब में होनी चाहिए. इवन इफ़ यू आर अ शाई, इंट्रोवर्ट, सोशली एंक्शियस पर्सन, यू हैव टू बी अ ग्रोन अप सम डे, एंड ग्रोइंग इन लाइफ, टेकिंग दीज बिग स्टेप्स वाइल टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड नॉट बीइंग दिस एंक्शियस पर्सन इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई आपके लिए ऐसे चादर बिछा के नहीं बैठे कि आओ जी हम आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं. दुनिया को अपने बहुत काम है, 100 काम है. सो नो वन इज़ गोना टेक केयर ऑफ यू. यू आर योर ओन हीरो, यू आर योर ओन सेवियर, एंड आपको ही अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, आपको ही प्रिपेयर होना पड़ेगा जिससे आप अपने आप को बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सको. एंड आई नो कुछ लोग इससे कन्विंस्ड बिल्कुल फील नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर ऑल सरफेस लेवल टॉक्स, राइट. लाइक मेरे को भी लोग ऐसे बोलते थे जब मैं छोटी थी, मैं कन्विंस नहीं हुई. मैं अब अपने लेट 20s या 30s में आके ये सोच रही हूँ कि ओ शिट ये कर लेती, वो कर लेती. बट ये चीज़ें जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, दुनिया बोलती रह जाती है पर आप उन पर काम करना पसंद ही नहीं करते. यू आर लाइक मैं जैसी हूँ ठीक हूँ. बट ऐसा नहीं है. आप जाओ, उस एनवायरनमेंट में जाओ. अगर आप प्रिपेयर होके जाते हो, सब करके जाते हो, फिर भी आप अपना पूरा बकरा बना लेते हो, उल्लू बना लेते हो, ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया. मोस्ट थिंग्स इन लाइफ, अगर आपके लिए कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होगी ना जिस पे आपको एंग्जाइटी हो रही हो, यू जस्ट नीड टू आस्क वन क्वेश्चन. ये मैं अपने आप से पूछती हूँ हमेशा. सबसे बड़ा हमारा डर क्या होता है. यू नीड टू आस्क योर सेल्फ वॉट इज़ योर बिगेस्ट फियर आउट ऑफ दिस सिचुएशन. वॉट इज़ दैट थिंग जो हो जाएगी बुरी से बुरी. यू नो वॉट इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन. या फिर जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा. बेइज्जती हो जाएगी, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, यू विल मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ. महीनों तक लोग तुम्हारे बारे में एग्जाम्पल दे के खिल्ली उड़ाएंगे, बात करते रहेंगे, ठीक है. बोलेंगे इसको तो आता ही नहीं कुछ, बेकार है ये. हो गया, ठीक है. अब इसमें से 2 सिचुएशन निकल सकती है जो आपको फील होगी, ठीक है. यू विल फील सैड, ह्यूमिलिएटेड, यू विल फील अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. देर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस दैट कैन कम टू यू. बट उसके बाद जब यू विल गेट ओवर दैट, या फिर जब आगे आप सोचोगे, थोड़ी और ओवर थिंकिंग में करोगे आप, इंडल्ज. सो दोनों में से एक चीज़ हो सकती है. नंबर 1, ये सिचुएशन वॉज सो हॉरिबल, मैं इस सिचुएशन में कभी नहीं जाना चाहती. मेरे को स्टेज पे बुलाया, मैं फंबल कर गई, मेरे से बोला नहीं गया, मुझे याद भी नहीं मैं क्या बोल के आ गई, सब मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, ठीक है. मैं आगे से कभी स्टेज पे नहीं चढ़ूँगी. मैं अपने आप को इस सिचुएशन में डालूंगी नहीं. आई विल अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट. दिस इज़ वन वे यू कैन गो. और नेक्स्ट वे, लाइफ में ऐसी सिचुएशंस और आएंगी, ठीक है, मैं मना कर दूंगी, बट उससे मेरी ग्रोथ हैम्पर होगी बिकॉज मैं जहाँ हूँ फिर वहीं पे स्टक रह जाऊँगी, ठीक है. तो आगे से अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आई विल नेवर लेट दिस हैपन कि मैं इतनी लेस प्रिपेयर्ड हूँ कि मेरा फिर से मजाक बने. सो आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ जिससे ये सिचुएशन कभी ना आए. सो देर आर दीज 2 थिंग्स कि मैं ये कभी नहीं करूँगी, या फिर मैं ये करूँगी पर ये सिचुएशन, ये ह्यूमिलिएशन मैं कभी नहीं आने दूंगी अपने ऊपर. नाउ दिस इज़ अ वेरी एम्बैरसिंग थिंग फॉर मी. मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल देना चाहूँगी. व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मेरी पर्सनैलिटी इट कम्स अलाइव. ओके, आई फील रियली गुड एंड वेरी कंफर्टेबल, बट दैट इज़ ओनली व्हेन आई एम अलोन, राइट. मैं यहाँ छत पे भी हूँ बट अपनी छत पे मुझे कोई नहीं देख रहा आसपास. बट व्हेन इट कम्स टू कोलैब वीडियोज़, ओ माई गॉड, आई रिमेंबर कोविड का टाइम था एंड उस टाइम मेरी मेंटल हेल्थ भी कुछ बहुत ज़्यादा सही नहीं थी. दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़, बट आई थिंक माई फर्स्ट ऑनलाइन कोलैब वॉज विद मृदुल एंड वी डिड अ मिस्ट्री बॉक्स. ओके, सो दैट वॉज माई फर्स्ट कोलैब, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. कैसे एक वो स्प्लिट स्क्रीन में कैमरा सेट करते हैं, कैसे मिस्ट्री बॉक्स करते हैं. एंड फ्रॉम वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम मृदुल्स वीडियोज़ इज़ दैट शी ऑल्सो यूज टू बी एन इंट्रोवर्ट, बट शी वर्कड रियली हार्ड ऑन हर skills and she took that chance on herself and that proved to be fruitful. Like in spite of being an introvert, she is extremely well spoken. Whenever you meet her, she will give you that attention. She will, you know, kind of present herself in a very classy manner. So me as an introvert, जिसने अभी तक अपने ऊपर कोई सेल्फ वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है, जिसको नहीं पता कि कोलैब में कैसे इंटरेक्ट करना होता है, या फिर अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है तो आप ऐसे
रेस्टिंग बिच फेस रख के नहीं बैठ सकते, या फिर आप ऐसे अजीब सा फेस रख के नहीं बैठ सकते कि आप ऑकवर्ड लगो. यू हैव टू लाइक स्माइल एंड नॉड एंड आस्क क्वेश्चंस एंड थ्रू आउट दैट फिल्मिंग प्रोसेस. ठीक है, एडिटिंग के बाद जो हुआ मैं अपना बिहाइंड द सीन प्रोसेस बता रही हूँ. पहली बार जब मैंने मृदुल से ऑन कैमरा इंटरेक्ट किया, आई न्यू शी वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. Whenever we had these moments जब एक awkward silence हो रही थी, जब मैं गिफ्ट्स खोल रही थी मिस्ट्री बॉक्स के, she was the person, उसको पता था कि ये क्वेश्चंस कैमरा पे भी नहीं आएंगे, we will cut these off because obviously गिफ्ट खोल रहा है, खच खच आवाज़ आ रही है, but she kept asking me these questions के okay where do you see yourself in 5 years, ये कैसा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, घर में क्या, मतलब she had all these questions to make me feel comfortable and just keep engaging ताकि एक awkwardness चली जाए, to just maintain a good environment all around and एक vibe सही बैठे. And that is one thing that जब camera off हुआ, everything went down well. Just thought to myself that wow, that was an experience and a half and I am nowhere near this level जहाँ इफ़ अ पर्सन कोलैबोरेट्स विद मी, मैं तो घंटा कुछ नहीं पूछ पाऊंगी यार, लाइक लानत है. और उस टाइम ना चैनल भी इतना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि ट्रोलिंग भी कोई चीज़ होती है. एंड उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम पे ट्रोल किया गया था. अगेन आई एम सेइंग मृदुल की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है. शी वॉज डूइंग हर बेस्ट, आई वॉज डूइंग माई एवरेज बेस्ट जो मैं उस टाइम पे थी. बट काफ़ी ज़्यादा हम दोनों की वीडियोज़ पे आई गेस आई रेड अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स दैट क्वर्की बहुत ऑकवर्ड लग रही है, या क्वर्की अजीब सा मतलब कंफ्यूज लग रही है, उसका दिमाग ऐसे उड़ा हुआ लग रहा है, जोन्ड आउट लग रही है. एंड दैट वाज ट्रू बिकॉज आई वाज जोन्ड आउट, आई वाज ऑकवर्ड बिकॉज मुझे नहीं पता था कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं. दिस वाज माय वेरी फर्स्ट कोलैब एंड ठीक है, शी must have been doing this for a long time. mystery box का जो concept था वो मृदुल was the very first, one of the few creators शुरू में जिन्होंने mystery box करना शुरू किया था. and I was just like yeah, ये जो comments हैं what they're saying is true but it still hurts because I am not coming out as a good person or a very एक अच्छी personality वाला person. and I was not jealous of the situation के उसको अच्छा बोल रहे हैं या मेरे को लोग point out कर रहे हैं. I was just like babe, Aditi, quirky, you need to work on it, like you really need to brush up your skills. and with every collab I started getting better because जब मैंने next collab किया and उसके बाद next collab किया, I always used to say these lines to myself, how will I introduce this guest collab on the channel, how will I talk about them, क्या उनके पीछे मैं उनके channel के बारे में बता सकती हूँ, उनकी videos अगर मुझे collab करना होता था, as creators we're not able to watch each and every piece of content even if we like each other. so जब वो कोलैब पास आ रहा होता था आई यूज़ टू रिसर्च एंड ब्रश अप ऑन ऑल ऑफ दीज वीडियोज़. मैं थोड़ा रिसर्च करती थी सो दैट आई हैव क्वेश्चंस टू आस्क देम एंड इंटरैक्ट विद देम. दीज आर बेसिक स्किल्स. अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो और आप कोलैब कर रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा. एंड वैसे ही अगर आप किसी प्रेजेंटेशन पे जा रहे हो, आपको कुछ नया प्रोजेक्ट करना है, हाउ विल यू प्रूव टू योर superiors that you are the best person for this job? By researching, by being the most prepared person in the room. And that is what that lesson of collaborating with Mridul and having that whole trolling episode and that hate comment वाला चीज़ and जो constructive criticism भी मुझे दे रहे थे, उस सब से मैंने यही सीखा that मेरे में बहुत कमियाँ हैं and I need to work on myself. and इसमें कोई गलत बात नहीं है. if you need to work on yourself and if you lack in some things तो क्या हो गया, you will brush up on those skills, you will get better. nothing to feel ashamed about in this. now if I compare the time of my first collab with the kind of collabs जो बीच बीच में मैं करती हूँ, किसी से interact करती हूँ, बात करती हूँ, I see a huge difference in myself. I see a huge difference with the way I am feeling inside and the confidence and the kind of topics जिन पे मैं बात करती हूँ, कुछ किसी को बोलती हूँ, that have changed. like पहले तो मेरे पास शून्य idea होता था कि मैं बोलूँगी भी क्या, and now I am well prepared. but if you compare me still with other creators के दो लोग कोलैब कर रहे हैं एंड यहाँ पे मैं किसी के साथ कोलैब कर रही हूँ या किसी से इंटरेक्ट कर रही हूँ, यू विल स्टिल फील दैट I am lacking, ठीक है, but that is a part of my personality as an introvert which I cannot change. I am doing the best I can, and even if that slight awkwardness is on my face, that's just the way I am and I will not feel ashamed about it. I have a problem in making connections with everyone and anyone because I prefer having deeper connections in life and I'm always trying to जो भी मेरे पास आए उनसे अच्छे से बात करूँ, but वो एक वाइब जिससे मैच होती है वो उसी से मैच होती है एंड वो वाली वाइब में आपको मेरी आंखों में वो ऑकवर्डनेस नहीं दिखेगी, बट जिनके साथ दिख रही है उनके साथ दिख रही है बिकॉज वाइब मैच नहीं हो रही है. एंड आई डो नॉट फील अशेम्ड अबाउट इट. आई एम हेयर टू वर्क, आई एम हेयर टू
build connections and I'm doing the best I can. So always compare yourself with your past self, not with other people around you. And ऐसे ही prepare होते होते you can get better in life. Now as an adult, if you are in any kind of profession, I think networking is the biggest, roadblock in the life of an introvert. So I'm going to tell you some ways in which I try to network. Number one is one-on-one connections. इसके बारे में मैंने briefly अभी पहले भी बात की थी, but instead of being in a large group and trying to impress people and trying to get yourself noticed in a huge crowd, I think it's the wrong way to go for introverts. Try deeper, meaningful connections with a smaller group of people or few people that you have selected out for yourself. Like for instance, you're going into this party or you're going into this meeting and you know that, okay, these are the 2-3 people jo influential hain, they can help me in life and I would love to work with them for professional gains or reasons. You go up to them and start a conversation. You come prepared, you know what you're talking about, वो चीज़ जाके बोलो, see how the vibe is and have deeper meaningful conversations rather than एक बड़े इवेंट में एक पूरे क्राउड को प्लीज़ करने की कोशिश करना. अब क्योंकि इंट्रोवर्ट्स डीप थिंकर्स तो होते हैं, दैट्स वन ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स, बट वो ऑन द स्पॉट थिंकिंग में बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं. मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ अगर मुझे कोई स्पॉट पे डाले तो. सो प्रिपेयर योर क्वेश्चंस इन एडवांस, प्रिपेयर व्हाट यू गोना से इन एडवांस, प्रिपेयर सम टॉपिक्स इन एडवांस रादर देन बीइंग पुट ऑन द स्पॉट एंड उस टाइम पे फंबल करना या ऑकवर्ड फील करना. Come prepared. You can also leverage online networking rather than face to face बात करना. Like अगर आपको one on one connection बनाने में अभी आप थोड़े से weak हो and you feel like this is not the best way to go for me personally, because सबका एक individual experience होता है, सबके individual insecurities and flaws होते हैं and pros and cons होते हैं. So you can take advantage of, अगर आप media field में हो, say Instagram पे आप brand से connect कर सकते हो, उनको mail कर सकते हो, and even if you are in a corporate setup, so आप LinkedIn पे लोगों से connect कर सकते हो. So there are a lot of, like thankfully इस digital age में there are a lot of things that you can do as an introvert and that's the best part. So these platforms kind of allow you to connect with people online without the anxiety of talking to them face to face. And I think the most important thing जो मैंने शुरू में नहीं की थी, जब मैंने अपने आप पे अपनी skills पे work करना start किया था, but now I do it more often, is to set boundaries. Boundaries हर चीज़ में important होती है, and how you set boundaries as an introvert is that sometimes it's okay to say no, So allow yourself that time to kind of recharge. And अगर आपने 2-3 social events साथ में attend किए हैं and चौथा कुछ आ गया है, and if you think that you can skip this and इतना ज़्यादा आपकी growth उससे hamper नहीं होगी, skip it bro. नो वन इवन केयर्स. अपनी तबीयत ख़राब करने से अच्छा, अपने को एंग्जाइटी कराने से अच्छा, एंड अगर आपको लग रहा है कि ओ माई गॉड अभी मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया एंड आई एम जस्ट सो फुल, ऊपर तक पानी आ रहा है सिर के, यू कैन से नो टू 1 or 2 events and just sit back and recharge, because setting that boundary and taking the time off to recharge yourself in your safe space, alone time, me time is very important. अगर आप ये नहीं करोगे तो आप और ज़्यादा ड्रेन होते जाओगे and then you will not enjoy this process. And what's the point of doing anything in life अगर आप उस चीज़ को enjoy नहीं कर रहे, अगर आपको वो 1% भी खुशी नहीं दे रही है, rather आपको बुरा और sick feel करा रही है to your stomach, because trust me I know how it feels. तो इसलिए it's important to sometimes say no, it's okay. थोड़ा मोटा लॉस सब ले लेते हैं लाइफ में, इट्स फाइन. आई वांट टू ऑल्सो टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड लीडरशिप स्किल्स एज एन इंट्रोवर्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग जो अगर मैं अपने 20 ईयर सेल्फ को बोलती तो वो कहती चल निकल यहाँ से, पागल हो गई है क्या, वैसी वाली फील होती, उस टाइप की वाइब्स होती, बिकॉज आई नेवर कुड सी माई सेल्फ बीइंग अ गुड पब्लिक स्पीकर और बीइंग अ लीडर. मैं इन माई ओन लिटिल वर्ल्ड, in my own little way, I lead my small little team of that quirkiness, and whenever an opportunity presents itself where I have to go up and speak in a crowd, or कभी-कभी ऐसे मौके आ जाते हैं, so I don't say no to it. And why and how did that happen? I'm going to share my tips with you. Many great leaders of this world are introverts, and वो great leaders क्यों बने, कैसे बने, is because they listen first and speak second. Preparation is always key. मैं तीसरी चौथी बार इस वीडियो में बोल रही हूँ because that is the only thing that will save you. Prepare, write down, learn your scripts, your speeches, your presentations, whatever it is. Come prepared. Also, while this speech thing is going on, one of the most important points is that find a speaking style
that works out for you. You do not have to rush or speak fast or crack jokes or have a sense of humor. Whatever works for you, डू दैट. लाइक आप लोग मेरे इस थेरेपी ट्यूसडे वाली वीडियो में जब मैं एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात कर रही होती हूँ, आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव नोटिस्ड और नॉट, बट आई हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट स्पीकिंग स्टाइल इन विच आई टेक अ लिटिल बिट ऑफ पॉजेज जब मैं बोलती हूँ, यू नो, लाइक जैसे मैंने बोला कम प्रिपेयर्ड, मैं थोड़ा एम्फेसाइज करके वर्ड्स को बोलती हूँ. कुछ मेरे वर्ड्स पे थोड़ा फुल स्टॉप आता है, थोड़ा कॉमा आता है. मतलब दैट इज़ द वे जिससे आप अपनी एक टोन डेवलप करते हो, अपना एक काम डिमीनर डेवलप करते हो. सो यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी दिस पर्सन जो फास्ट क्विक बोले, क्विक विटेड चीज़ों में बोले या फिर बहुत लाउड बोले. यू हैव टू बी काम, टेक योर पॉजेज एंड कमांड दैट रिस्पेक्ट, कमांड दैट अटेंशन ऑफ द पर्सन. इन दिस वर्ल्ड वेयर बहुत सारे लोगों का अटेंशन स्पैन अब बिल्कुल ही तबाह हो चुका है, यू स्टिल हैव टू बी दैट पर्सन जो अपना टाइम लेके बोले. क्योंकि जब आप अपना टाइम लेके बोलते हो, इट गिव्स द अदर पर्सन दिस सिग्नल दैट दे आर सो सिक्योर इन देमसेल्व्स दैट दे आर नॉट फाइटिंग फॉर योर अटेंशन. दे आर नॉट लाइक ओके 60 सेकंड के अंदर मुझे सब कुछ फट करके बोलना है. नो, टेक योर टाइम, कमांड दैट अटेंशन. एंड क्योंकि आप वो अटेंशन कमांड कर रहे हो, आप अपना स्वीट लिटिल टाइम लेके बोल रहे हो, तो बंदा आपको अटेंशन देगा भी, बिकॉज आप डेस्परेट नहीं दिख रहे किसी के सामने उनकी अटेंशन के लिए. सो दे विल बी लाइक ओके दिस पर्सन इज टेकिंग देयर टाइम, दे मस्ट हैव समथिंग ग्रेट टू से, या कुछ उनके पास वैलिड पॉइंट होंगे, लेट मी लिसन टू दैम. सो ऐसे आप अपना एक स्टाइल ऑफ स्पीकिंग डेवलप कर सकते हो. देर इज़ नो शेम इन लॉकिंग योर सेल्फ इन अ बाथरूम और योर ओन रूम एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सीइंग कि आपके क्या फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं. जब कोई सामने वाला बोल रहा होता है तो आपका मुंह कैसा दिख रहा होता है. डज इट लुक ऑकवर्ड, डज इट लुक रूड, व्हाट इज़ द थिंग जो लोगों को अनॉय कर सकती है आपके बारे में, व्हाट इज़ दैट टोन जो लोगों को अच्छी लगेगी, या आपको क्या सूट कर रहा है अपनी पर्सनैलिटी पे. हाउ डू यू वॉन्ट टू बी सीन इन दिस वर्ल्ड. दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. जब आप एक ग्रोन अप हो जाते हो ना, एंड आपको अपनी जॉब में, अपने जिस भी चीज़ ऑफ लाइफ है उसमें एक्सेल करना होता है, इवन इफ इट इज़ योर पर्सनल लाइफ एंड फाइंडिंग अ पार्टनर, गोइंग ऑन अ डेट, यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको बोलना आता. So this third point of adding pauses and silences and having your own way of speaking, your own tone of style of speaking that suits you is a very beautiful way of not asking for attention, it's commanding attention. उसे ना सामने वाला भी अपना attention आपको अपने आप automatically दे देता है. बहुत ही psychological चीज़ है ये. And then they're able to absorb your words better. You leave a lasting impact than the other person जो फट करके अपनी बात बोल के चला गया. Now these were all my tools जिनसे मैंने अभी तक जो भी अचीव किया छोटा मोटा अपनी लाइफ में has been very great in a way for me. Like I am very happy and content in my life, and I feel that somewhat I am successful in life. I don't know आप लोग क्या सोचोगे. मेरी नज़र में मैं एक successful person हूँ, and I have no shame or guilt or ऐसा कुछ मैं घमंड से नहीं बोल रही हूँ. I feel really happy, but as an introvert, I think sometimes you have to define success in your own way. Like you have to redefine what success means for you. Like does success only mean कि आप के एक बहुत ज़्यादा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स होना चाहिए, या आप सभी की आंखों का तारा होने चाहिए, या फिर इफ़ यू वॉक इन टू अ रूम यू हैव टू बी द लाइफ ऑफ द पार्टी, यू हैव टू बी दैट पर्सन जिसको सबसे बात करनी है, वो कहे ओ हो ये आ गया जी अब तो माहौल बन जाएगा. नो, यू डोंट हैव टू बी दैट पर्सन. यू कैन बी दैट पर्सन जिससे 4 या 2 लोग बात करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एंड बाकी लोग दे डोंट केयर दैट मच. इट्स ओके. सो यू डोंट हैव टू फिट योर सेल्फ इन दिस बॉक्स एंड इन दिस रोल ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट जहाँ आपको रोज़ सुबह उठ के एक्टिंग करनी पड़ रही है. लाइक यू डोंट हैव टू बी एन आइडियल एक्सट्रोवर्ट टू बी सक्सेसफुल. सो ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो एक बुलेट पॉइंट अपने मन में बनाया हुआ है कि इफ़ आई एम दिस पर्सन, इफ़ आई एक्ट लाइक एन एक्सट्रोवर्ट, देन ओनली आई कैन बी सक्सेसफुल. कट दैट आउट and redefine your own success. कि success आपके लिए क्या mean करती है. What is it to you? What is that definition that suits in your life? It might not suit in everybody's life, but it suits perfectly. It fits perfectly in your life. Also, to be successful in life, you have to find a career that suits your strengths. I chose a career जिसमें 50% here है, 50% there है. I have to be in a lot of spaces जहाँ मुझे बहुत सारे लोगों के बीच होना होता है, जहाँ मुझे इंप्रेशन बनाना होता है, जहाँ मुझे जैसे इफ़ आई गो टू अ यूट्यूब इवेंट तो मुझे यूट्यूब एग्जीक्यूटिव से एंड जो भी वहाँ के मैनेजर्स वगैरह हैं उनसे बात करनी होती है, एंड आई हैव टू टेल अबाउट माई सेल्फ, माई चैनल, माई ये माई वो, एंड आई हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट. सो मुझे ये सब करना पड़ता है. और इवन इफ़ आई एम मीटिंग CEOs और PR एजेंसीज, सर्टन ब्रांड्स जिनके एक टीम नायका की, नैप की ये मैनेज करती हूँ, आई हैव टू टॉक टू
देम, राइट? अभी मैं सो फ्रेग्रेंस वालों के साथ जब लंदन गई थी या रियलमी के साथ जब स्पेन गई थी, तब वहाँ की जो टीम्स थी, आई हैड टू इंटरेक्ट विद देम, राइट? मैं ऐसे नहीं कि मेरे को बुला लिया तो मैं चुप बैठी हुई हूँ. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जिन पे मुझे वर्क करना पड़ा. बट अल्टीमेटली जो मेरा गोल था वॉज दैट ओके, मैं एक कमरे में कैमरे के सामने बैठ के जैसी हूँ वैसी मैं तू तड़ाक ये वो धमाल मचा सकती हूँ कैमरे के सामने विदाउट फीलिंग शाय. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जॉब. तो मैंने अपने लिए एक ऐसा करियर चुना जो मेरे पे और मेरी पर्सनालिटी पे सूट करता है, मेरी स्ट्रेंथ्स पे सूट करता है. कि जब आई एम अलोन आई थिंक डीप, आई एम फुल ऑफ क्रिएटिविटी. मुझे रोज़ नए आइडियाज़ आते हैं मैं क्या वीडियोस बना सकती हूँ. मुझे लोगों से राइट करके इंटरेक्ट करना पसंद है. सो दैट इज़ वाई जब मुझे कमेंट्स एंड डीएम्स आते हैं मैं उनका रिप्लाई करती हूँ एंड आई फील जेन्युइनली हैप्पी डूइंग सो. एंड रादर देन पिकिंग अ जॉब फॉर माई सेल्फ जहाँ मुझे 50 लोगों के सामने फिजिकली बात करने में घबराहट होती, वहाँ मैं 1 मिलियन लोगों के सामने ऑनलाइन कैमरे के सामने बैठ के बात कर रही हूँ. सो आई प्ले टू माई स्ट्रेंथ्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, हैव टू चूज़ अ करियर फॉर योर सेल्फ. या तो जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स में प्ले कर सको, या फिर एक कैलकुलेटेड एनालिसिस आप करो कि ठीक है, अगर मेरी ये वीकनेस भी है एंड ये जॉब मेरे से डिमांड करती है, आई विल बी एबल टू काइंड ऑफ वर्क ऑन देम अगर मेरे को अपने में पोटेंशियल दिख रहा है तो. सो चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दैट मैचेज योर स्ट्रेंथ. ऑल्सो प्लीज़ यूज़ योर एनर्जी वाइजली. लाइक आप इधर उधर अगर देखते रहोगे ना, कंपेयर करते रहोगे अपने आप को दूसरों से एंड स्पेशली एक्सट्रोवर्ट से, ब्रो यू विल नॉट बी एबल टू कैच अप एवर. आप अपने आप से अपने आप को करो कंपेयर. आप देखो कि आप 2 साल पहले कहाँ थे, कैसी आपकी हालत थी, एंड अगर उन 2 सालों में आपने 5% भी इंक्रीज़ किया है अपने वर्क में, अपने स्किल में, अपने बोलने के स्टाइल में, अपने किसी भी चीज़ में आपका एक पर्सनल ग्रोथ हुआ है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सो यूज़ आवर एनर्जी वाइजली इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कीप अप विद व्हाट एक्सट्रोवर्ट्स आर डूइंग. ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, भाई इसको तो ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला. ये सब छोड़ो, अपने पे फोकस करो एंड टेक योर टाइम टू रिचार्ज एज वेल. भाई आप मार्क ज़करबर्ग का एग्जाम्पल ले लो, जिसने इतनी बड़ी सोशल मीडिया ऐप फेसबुक, एक टाइम की ब्रेकआउट ऐप थी, वो बनाई है. बट अगर आप उस बंदे को देखोगे, ही इज़ नॉट अ सोशल बटरफ्लाई. उसने इतना कुछ अचीव किया है, या फिर मेटा ये वो बनाया किया, इतना सब वो कर रहा है, अपना एक एम्पायर खड़ा किया है विदाउट बीइंग अ सोशल बटरफ्लाई एंड कीपिंग अ वेरी लो प्रोफाइल. सो ये एग्जांपल्स मैं इसीलिए आपको दे रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं टीचर की तरह आपको बताना चाह रही हूँ, बट दीज एग्जाम्पल्स गिव मी स्ट्रेंथ, गिव मी मोटिवेशन. एंड अगर मैं इस चीज़ से मोटिवेट हो सकती हूँ एंड अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कर सकती हूँ, सो मुझे लगता है आप लोग भी कर पाओगे. एंड अगर आप स्पेशली 20s में हो और थेरेपी ट्यूसडेज़ पे ट्यून इन करते हो, तो आई होप कि आपको इस चीज़ से थोड़ी बहुत मोटिवेशन या कुछ ना कुछ टिप्स ट्रिक्स मिल गए हो, जिससे आप एटलीस्ट वो एक जर्नी, वो एक फर्स्ट स्टेप ले सको टुवर्ड्स वर्किंग ऑन योर सेल्फ. और इवन इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क योर सेल्फ, अगर आपकी अभी वो मेंटल कैपेसिटी नहीं है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. सो छोड़ो, वीकनेस को छोड़ो, जो स्ट्रेंथ्स है उनको थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं. आपके जो भी मैं स्ट्रेंथ्स लिस्ट आउट कर रही हूँ, या फिर अगर आपको लगता है कि यू हैव अ स्पेशल स्ट्रेंथ, मेक अ नोट ऑफ इट. डायरी लो या फिर अपनी नोट्स आप खोलो, लिखो आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं जो आपको अपने अंदर अच्छी लगती है, एंड जस्ट फाइंड अ न्यू वे ऑफ इंक्रीजिंग इट, थोड़ा उसको बूस्ट करना. सो वो कैसे हो सकता है, वो ट्राई कर सकते हो आप. सो पुट योर सेल्फ इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस जहाँ आप और आपकी सुंदरता और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपके जो गुण हैं, वो निखर के आएँ. बिकॉज बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज़ नॉट अ वीकनेस, इट्स अ वेरी यूनिक एडवांटेज. एंड इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, you need to understand that success is not about being loud. It's about having quality over quantity. It's about persistence. It's about focus. It's about creativity. It's about success. It will come from within. जब आप अंदर की चीज़ें ऐसे उभारोगे, खिलाओगे फूलों की तरह, तब जाके सक्सेस आएगी. बहुत फिलोसफिकल होती जा रही हूँ मैं. यू रियली डोंट नीड टू बी लाउड टू बी हर्ड, यू जस्ट नीड टू बी यू. क्योंकि ना ये होता है हमारी सोसाइटी में, तो ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि बच्चा अगर शाय हो, ज़्यादा ना बोलता हो, पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आसपास के जो रिश्तेदार हैं, वही आपको इतना गिल्टी फील करा देते हैं ना बोलने पे, कि बंदा ऐसा लगता है कि जो बंदा नहीं बोलता या शाय है, इसकी तो कोई लाइफ ही नहीं है, इसका क्या होगा. उसको इतना हेल्पलेस एंड बिल्कुल ऐसे होपलेस फील करा देते हैं. एंड आई एम हेयर विद दिस एपिसोड टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप, because being an introvert is never a setback and it's actually your secret weapon. While the world glorifies people जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं या social butterflies होते हैं, जिनका बहुत बड़ा friend circle होता है, true success often comes to people who listen, who analyze, who think deeply, who love deeply, who do their work with focus and with full on determination. Trust me, you do not need to be the loudest in the room, you just need to be
prepared. And आपकी जो ये क्वाइट नेचर है, इट अलाउज यू टू ऑब्जर्व थिंग्स जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं लाइफ में, एंड वो आपको आपका एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है, एक नई एडवांटेज प्रोवाइड करती है, जिससे आप अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें, नए नए सोल्यूशंस आगे दे सकते हो और अपनी ग्रोथ में उसको लेवरेज कर सकते हो. नॉट हैविंग अ बिग सोशल सर्कल इज ऑल्सो नॉट अ वीकनेस, इट्स अ blessing in disguise. While many people surround themselves with fake friends for just appearances, introverts very naturally avoid these superficial situations and connections, and gravitate towards these deeper meaningful connections and kind of invest in meaningful relationships. Repeat after me: quality will always trump quantity. In a world that is obsessed with networking, introverts master the art of selective authentic connections, something जो कि eventually lead करेगा to a lot of opportunities in life, a lot of stronger, more fulfilling bonds rather than unnecessary drama. So just embrace your quiet power. Trust me, the world doesn't need more noise. It needs more thoughtfulness. It needs more sensitivity. It needs more creativity. And guess what? That's exactly what introverts bring to the table. So every day is a new opportunity to wake up and keep building yourself, keep thriving, and just let your success do the talking. आपको किसी को कोई और जवाब देने की ज़रूरत नहीं है जो आपको आके नीचा दिखा रहा है, आपको बोल रहा है कि आपकी नेचर आपको ग्रो करने में हैम्पर करेगी, या कोई भी नॉनसेंस BS आपके दिमाग में, आपके मन के अंदर वो बीज बोना चाह रहा है. डू नॉट डू दैट. जस्ट लेट योर सक्सेस डू द टॉकिंग. एंड या, आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ थेरेपी ट्यूजडेज. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. अगर ये एपिसोड से आप रेजोनेट हुए हो, या फिर इफ़ यू नो ऑफ समवन who desperately needs a pick me up, and if you think that this kind of talk, this kind of episode will help them, then share it with them. Send this video to someone who needs to hear this. Please, please, please ये याद रखना, आपकी quiet nature आपकी strength है. So embrace it, own it, and use it to build the kind of life you want for yourself. Until next time, keep thriving, you guys. Thank you so much for tuning in for Therapy Tuesdays. Next video will come on Friday. I have a very exciting lineup, and if there is any kind of topic that you want me to discuss, drop it down below in the comments, and I would love to do that on my मंजी. मुझे लगता है कि मुझे अब ये चारपाई वाली सेटअप चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अब दिल्ली की गर्मियाँ आने वाली हैं, एंड देर इज़ नो वे ऑन अर्थ कि मैं ऐसी चुपती जलती गर्मी में बैठ के यहाँ मंजी पे करूँगी. सो लेट मी नो what is a different kind of setup that you would enjoy. मुझे तो ये गार्डन पीछे थोड़ा हरियाली में अच्छा लगता था, but I won't be able to keep up with it. So let me know what kind of setup do you want, what kind of topics do you want me to discuss, and let me know if this was something that you resonated with as an introvert or as an extrovert. If you want to add something, I am open to any kind of feedback. So yeah, comment section is your bestie right now because I'll be replying to everyone also. So अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, ट्यूसडेज़ को हम कभी कभी ऐसे थेरेपी ट्यूसडेज़ वाली वीडियो डालते हैं, एंड यूजुअली फ्राइडे को 2 PM वीडियोज़ आती है नई. ऑल्सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @thatquirkymiss. I will see you guys next time. Bye bye.